Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic translation. So what exactly the meaning of translation? Translation means to convert any language into the another language. We can take some example like if I don't know how to speak English and if I not understand the English and I only understand the Hindi, then what I have to do? I just arrange one person that who know English as well as Hindi, and if any person is speaking with me in English, then that person can convert his English language into Hindi and then I can understand that. So same case in case of translation, in case of protein synthesis, is that we don't understand the language of mRNA, but we understand the protein, because proteins, these are the expression of the genes and these are the building blocks of our body. They help in the different function of our body. So how this protein synthesis is done, how the different genes they express themselves and finally into the proteins. So that is the translation. So there are the different steps in the process of translation, because it is not start at even a single time. There are the some machineries, there are the some preparatory, you can say, the events takes place before the translation. So what are these? First, the charging of tRNA. So what is the meaning of charging of tRNA? tRNA means the transfer RNA, and this transfer RNA play very significant role in protein synthesis, because the tRNA having the amino acid, it having the anticodon, it having the enzyme which can bind with it and also help for the attachment of the amino acid to the tRNA. So there it play a very significant role in the translation. So there is the need of the energy also. So this ATP, adenosine triphosphate, provide the energy, and how this charging takes place, let us discuss. So the charging, or the another name is amino acylation of tRNA. So what is the meaning? चार्जिंग मीन्स कि जो चार्ज होगा tRNA वो चार्ज कैसे होगा, उसके साथ एक एंजाइम जुड़ेगा, तो जिससे उसके अंदर क्या हो जाएगी, चार्जिंग हो जाएगी. सो फर्स्टली सपोज दिस अमीनो एसिड, फर्स्टली वन अमीनो एसिड इज देयर. दिस अमीनो एसिड बाइंड विद ATP because the energy is required for this process, and in the presence of an enzyme, that is amino acylation transferase, this enzyme transfer the amino group to the tRNA, and so that the charging of tRNA takes place. So amino acylation transferase, and we can say amino acid plus enzyme plus AMP एंड प्लस PPI. मतलब क्या बन जाएगा, पहले अमीनो एसिड होगी, वो ATP के साथ बाइंड करेगा, जिससे अमीनो एसिड साथ में बीच में क्या है, एंजाइम भी है. सो अमीनो एसिड एंजाइम ATP जो है वो ब्रेक हो जाएगी, दो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएंगे. सो इट चेंज इनटू AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और दो पायरोफॉस्फेट इसमें रिलीज होंगे, PPI. सो इट इज़ नोन एज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड. अब ये जो अमीनो एसिड है वो कैसा है, एक्टिवेटेड है. तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो चार्जिंग ऑफ, पहले तो ये अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, फिर वो tRNA के साथ जुड़ेगा. क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड को कौन लेके आता है, tRNA ही लेके आता है, बट उस tRNA के साथ भी ये बाइंड करेगा, और उसमें हेल्प कौन करेगा, एंजाइम अमीनो एसाइलेशन ट्रांसफरेज, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ATP. सो उसके बाद क्या होगा, ये हमारा बना
अमीनो एसिड, साथ में बीच में एंजाइम भी है। कौन सा एंजाइम है? अमीनो एसाइलेशन ट्रांसफरेज, और एएमपी है। तो दिस जो ये कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे बना था, दिस कॉम्प्लेक्स कंबाइन विद टीआरएनए, टीआरएनए के साथ कंबाइन करेगा और उससे ये टीआरएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। व्हाट इज दिस? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए की चार्जिंग हो गई टीआरएनए की। सो सिंपल अगर हम बात करें टीआरएनए के स्ट्रक्चर की, सो इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए, एंड आई टोल्ड यू दैट 1 प्राइम एंड मीन्स 1 5 प्राइम एंड द 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड जो जुड़े होते हैं, और यहाँ पे जो बेस पेयर्स होते हैं लाइक ए सी सी, तो इस 3 प्राइम एंड पे जो अमीनो एसिड है वो जुड़ा होता है इन केस ऑफ टीआरएनए, एंड दिस टीआरएनए ऑल्सो कैरी द एंटीकोडॉन। इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीकोडॉन, बिकॉज इट रीड द कोडॉन ऑन द एमआरएनए। तो अब हम इसको एक सिंपल डायग्रामेटिक वे में इसको लेके हम चलते हैं। तो एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए इज नोन एज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों है? बिकॉज इट हैज़ द मैसेज, एंड इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ द कोडॉन, एंड दीज कोडॉन्स आर इन द ट्रिपलेट फॉर्म लाइक ए यू जी। जेनेटिक कोड में भी हमने पढ़ लिया कि ये जो कोडॉन्स होंगे ये ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे। ओके, लाइक दिस इज द 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। ओके, तो इस एमआरएनए के ऊपर 5 प्राइम एंड से पहले, बिफोर द 5 प्राइम एंड and after the 3 prime end, means on the right side of the 3 prime end and on the left side of the 5 prime end, there are some sequence, and that sequence is known as UTR. UTR means untranslated region, means mRNA के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस होगी 5 प्राइम एंड से पहले और 3 प्राइम एंड के बाद, जो ट्रांसक्राइब नहीं होगी, जो प्रोटीन में चेंज नहीं होगी। ओके, सो दैट इज नोन एज द UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। सो that UTR, it is known as the untranslated region. So now how the process of protein synthesis starts. So the cellular factory for the formation of the proteins, that are known as the ribosomes, and the ribosomes are different in case of prokaryotes and eukaryotes. In case of eukaryotes, the 80S type of ribosomes are present, and in prokaryotes 70S, means there are the large and the small subunit of ribosomes, and when these ribosomes are attached on the mRNA, in 11th class also बताया हुआ है आपको कि जब राइबोसोम्स की लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, बहुत सारे राइबोसोम्स जब एक किस पे जुड़ जाएंगे, एक mRNA के ऊपर जुड़ जाएंगे, तो दैट इज नोन एज पोलीजोम। हम उसको क्या बोलते हैं? पोलीजोम। ओके, सो हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट? सो फर्स्टली बाय द इनिशिएटर tRNA. Initiator tRNA means which have the codon opposite to AUG, because AUG, that is the start codon present on mRNA. So when this AUG is present, then one tRNA come, and this tRNA having the anticodon UAC, and what happened then? Then the small subunit and the large subunit of the ribosomes bind to the mRNA. So what is the first step? Firstly mRNA is present, एक tRNA आएगा जो स्टार्ट करेगा प्रोसेस को,
और वो mRNA को कैसे पहचानेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, आफ्टर द UTR रीजन, क्योंकि वो यहाँ भी जुड़ सकता था, बट दिस रीजन इज द UTR मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। सो स्टार्ट कोडोन के लिए एक tRNA आएगा, देन दिस tRNA बाइंड विद दिस मीन्स इस कोड को, वो इस कोडोन को वो रीड करेगा, एंड देन द स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर बाइंड। अब जो राइबोसोम्स की जो सब यूनिट हैं, लार्ज और स्मॉल, वो बाइंड करेंगी, वो इसको रीड करेंगी, और tRNA जो हैं वो आते जाएंगे और अपने अमीनो एसिड को वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो अब जो ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स की, इसके पास दो साइट होती हैं। फर्स्ट साइट इज द P साइट एंड सेकंड इज द A साइट। सो व्हाट इज द P साइट? P साइट मीन्स द पेप्टिडाइडल साइट एंड द A इज द एक्सेप्टर साइट। सो क्या होगा, सबसे पहले जो ये P साइट है, सपोज अगर हम ये प्रोसेस यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ से tRNA को मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पे हो गई P साइट और A साइट। तो सबसे पहले जो tRNA है वो सपोज फर्स्ट tRNA आया, उसने इस AUG को रीड किया, तो AUG को रीड किया तो अपोजिट जो एंटीकोडोन बन गया, और एक अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड लाइक मिथियोनिन जो है वो बन गई। तो वो अमीनो एसिड जो है वो इस P साइट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो ये P साइट है अमीनो एसिड की, मतलब इस राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है, उसकी एक पेप्टिडाइडल साइट है और एक एक्सेप्टर साइट है। तो ये जो P साइट है ये मतलब ये आगे निकल जाएगा, और ये P साइट इधर, ये A साइट क्या हो जाएगी, P, और P बन जाएगी फिर A, मतलब इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो सब ये ट्रांसफ़र करेगा अमीनो एसिड को। तो सपोज़ यहाँ पे आया तो उसके साथ जो लाइक ये जो P है वो क्या बन गई, A। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड उसके साथ जुड़ गया, फिर ये यहाँ से सब यूनिट निकल जाएगी, ये P बन गई, ये A। आगे ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलती रहेगी, और एक जो पूरी अमीनो एसिड की एक चेन बन जाएगी, एंड दैट अमीनो एसिड चेन इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड चेन। So now I am going to discuss it with the help of a diagram. So with the help of the diagram you can better understand. Now with the help of a diagram you can see this is the mRNA, and the mRNA having the codon, and that is the tRNA. tRNA having the anticodon. So this is the 5' end and this is the 3' end. So before the 5' end there is the UTR region, untranslated region, and after 3' end also the UTR region. So the ribosome, the small subunit and the large subunit bind tRNA for the start codon AUG that come, and then it transfer it to the एक्सेप्टर टू द A साइट। मीन्स सबसे पहले वो P साइट से जुड़ा होगा और वो A को ट्रांसफ़र करता जाएगा अमीनो एसिड्स को, और वो जो A साइट है फिर राइबोसोम्स जो है आगे खिसकता जाएगा, और वो जो A साइट पहले बनी थी वो अब क्या हो जाएगी, P। तो इस तरह से ये शिफ्ट करता जाएगा। नाउ वी कैन सी, जैसे ये एक नया tRNA आया, इसने अमीनो एसिड यहाँ दिए, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर इस तरह से ऐसे जो है पूरा जो mRNA है उसको ट्रांसलेट हो जाएगा वो किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। यू कैन सी दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन, हेयर द न्यू tRNA दैट रीड द कोडॉन ऑन दिस mRNA, and by this the protein synthesis takes place. So when means these ribosome subunit, then it goes to the means the last codon. Here
and where the untranslated region, so for that there is the no tRNA. for the stop codon means यहाँ पे sequence आ जाएगी UGA UAG. ओके, सो दीज आर द सीक्वेंस जिनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन. तो इन सीक्वेंस के लिए कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी tRNA नहीं होगा, एंड देन ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिटैच हो जाएगी और फाइनली what is formed, the protein is formed. So that is the, you can say, the translation process of formation of proteins. Thank you.